ही निखिल सर का हाथ पकड़ के एक इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाए. ओके, दिस इज समथिंग Yes, डिफरेंट. ma'am. अगर आप दोनों ही ब्रदर उसको समझते हैं and both of you go for this kind of, you understand the session and you go with your choices, and let's say you are able to meet the demand, the academic requirement, you will be leading to great institutions of India in no less than a week's time. Is that clear, Himanshu? Yes, ma'am. So Himanshu, what is very important to understand कि जिस अपनेपन से मैम आपसे बात कर रही हैं, ओके, Yes, ma'am. मनचंदा सर ने आपसे बात की, राइट, और निखिल सर तो बिल्कुल आपके बड़े भाई जैसे ही हैं. आप अपने बड़े भाई को भूल जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, when you will have word with Nikhil sir. So in this case, that kind of belongingness is there. And I would like to share, because even you're from engineering background, so Mr. Nikhil Sharma is a very, very smart, intelligent, and successful engineer by degree. But after BTech, he didn't stop himself, and he is heading our international affairs. So he has spent his Okay. life even Middle East, giving counseling to great number of students in India and abroad. Okay, so one thing very important, Himanshu, I'll definitely request Nikhil now to take over the session, and Himanshu, I'll get back to you, and I'll be connected once again. Once we understand, we will see what best offer we can give you. Okay, Okay, ma'am. and wherever you Ma'am. find any issues there, you should come up with your questions, right, Himanshu? Sure, ma'am. Okay, so if Nikhil sir is initiating, you can ask your brother to even hear. That is very important. Discussion and guidance from Nikhil, okay? And you have to Okay, ma'am. understand Himanshu is very busy. Since morning 7 a.m., he's counseling students through Zoom sessions. But still, you can see the Okay. dedication and passion. Because engineer by degree, it's not by degree. It comes into your blood, right? So Yes, ma'am. people with scientific temperament are really working hard with great success. So Nikhil, over to you That's now. right, ma'am. Thank you so much for the introduction, ma'am. And Himanshu, yes. हिमांशु, मैं आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जा रहा हूं अभी. आई कैन सी यू आर इंटरेस्टेड इनटू इंजीनियरिंग. यू हैव रिटन इट ओवर देयर. प्रोग्राम इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग के लिए हैं आप? आई थिंक मैं उस टाइम से शायद से उसको समझ नहीं पाया था. अच्छा, मुझे लगा था फील्ड के बारे में था. हाँ, ठीक है, वही मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था बिकॉज आपने प्रेफरेंस में डाला है IMI, SIBM, MHRD एंड SP जैन, और प्रोग्राम इंटरेस्टेड आपने लिखा है इंजीनियरिंग. चलिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. आई थिंक आपने सोचा कि आपने जो ग्रेजुएशन में किया है वो किस चीज में किया है, इसलिए लिखा था. देयर इज नो प्रॉब्लम. अच्छा, मुझे अपने प्लान्स बताओ. आपने बताया कि सेल्स एंड मार्केटिंग यू आर इंटरेस्टेड इनटू. यस यस सर. या. So what is the most preferred college you are looking for and where exactly is the location? ऑल ओवर इंडिया कंफर्टेबल हो या फिर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस आपको चाहिए? सर स्पेसिफिक तो वैसे मैं फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी दिल्ली ही रहेगी सर. ठीक है. बिकॉज क्योंकि मेरी फैमिली का भी सपोर्ट रहेगा मुझे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 साल में हॉस्टल में रहा हूँ. मैं आपको पता है कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है. तो इसलिए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सर दिल्ली रहेगी, क्योंकि दिल्ली से डेली अप डाउन भी होगा. मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होगा. हाँ हाँ, ठीक है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. अच्छा, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कौन कौन से दिए आपने? सर मैंने कैट दिया था. सिर्फ मैंने कैट ही दिया था. कैट ही दिया था. कितना परसेंटाइल रहा है? सर 53.6 समथिंग रहा है. ठीक है. And I can see your academics as well. 7.6 is in your 10th class and then 64% in 12th. And it is 5.7 in graduation. तो मतलब 10th के बाद डाउनफॉल होना शुरू हो गया था. ऐसा क्यों? मतलब ऐसा था सर उस टाइम पे, क्योंकि तब तक तो घर वालों की चलती थी. हाँ. कि ये भी ले ले, वो भी ले ले, मैथ्स भी ले ले, बायो भी ले ले. अच्छा अच्छा. तो उस टाइम पे ये था. हाँ, इंजीनियरिंग मेरी चॉइस की थी, इसमें कोई शक नहीं है, बट ब्रांच मेरी चॉइस की थी. मेरा जो ब्रांच था वो केमिकल था, बट आई वाज लुकिंग फॉर कंप्यूटर साइंस. अच्छा, उस टाइम मेरा थोड़ा मेरा थोड़ा यस. ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यार. सी, these branches and all these things in the early stage of yours, they cannot decide your future. Yes, so it is totally your hard work and the options you're going to choose in your MBA, because MBA आपकी लास्ट डिग्री हो सकती है, ये आपको भी पता है ना? यस सर. तो हाँ, और मुझे ये बताओ कि देखो 53 है आपका, but the options you have chosen, these are all tier 1 colleges, है ना?
तो सी बेसिकली नीचे के 3 ऑप्शंस मैं चेक करूंगा, एसआईबीएम पुणे, एचसीएमएचआरडी, एसपी और एसपी जैन, ठीक है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के लिए स्नैप देना इंपॉर्टेंट होता है। आपने स्नैप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है? नो सर, नहीं दिया है ना? तो एक वो नहीं सर। कंसर्न रहेगा, but again like even if the symbiosis option is there, this college is really going to cost you a lot because यहाँ पर capitation amount बहुत high जाता है। Getting my point? तो ओके सर। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी एक्सपेक्टेशंस एमबीए को लेकर क्या है, और बेसिकली आप एमबीए में कितना जानते हो कॉलेजेस के बारे में, टीयर 1 कॉलेजेस, टीयर 2 कॉलेजेस, और whether you want a brand name, whether you want a college with good ROI, आपके विजन क्या है एमबीए को लेकर? सर मेरा सिंपल विजन है सर एमबीए को लेके, हाँ क्योंकि जी, मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि एमबीए एक ऐसा इकलौता ऐसा कोर्स है जिसमें मैं एनरोल करके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्किल्स को मैं डेवलप कर सकता हूँ, वेदर इन एब्सोल्युटली, टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। तो मुझे लगता है कि यही सबसे ज़्यादा मेन क्राइटेरिया होती है, बिकॉज ह्यूमन स्किल्स जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन टेक्नोलॉजी। नहीं बिकॉज बिल्कुल, अगर हम कहीं ना कहीं मैन पावर को संभालना या फिर उनको ट्रेन करना नहीं सीखेंगे, तो वो फिर भी बाद में टेक्नोलॉजी आएगी। एग्जैक्टली। और मुझे एक चीज बताओ, जैसे सिम्बायोसिस आपने यहाँ पर लिखा है, तो सिम्बायोसिस इज समवेयर ओवर देयर इन पुणे, यस? तो यस वो सर। तो मतलब थोड़ा ऑफ लोकेशन हो जाएगा आपके लिए, है ना? यस सर। या तो उसके अलावा सी एसपी जैन इज देयर, वी हैव एसपी जैन ग्लोबल विद अस, इट इज एब्सोल्युटली ओके। देयर विद अस, ओके। तो ये सारे कॉलेजेस में देखो ट्यूशन फीस कुछ 18-19 लाख के आसपास तो रहता ही है, ठीक है। तो मैं ओके सर। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बजट कितना है फॉर योर एमबीए? सर अगर 8 लाख से ऊपर हुआ तो मैं शायद से एजुकेशन लोन लूंगा, बाकी अदरवाइज मैं शायद से घर से बोरो करना चाहूंगा। हाँ, मैं समझ गया। और ये बताओ, तुम वैसे बच्चे हो जो ब्रांड नेम के पीछे जाता है, या फिर वैसे बच्चे हो जिसको आरओआई से मतलब है? आरओआई पता है ना आपको क्या होता है? यस सर। हाँ, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फोकस रखते हो, या फिर बस सिम्बायोसिस की डिग्री चाहिए दीवार पे लटकाने के लिए? सर मेनली तो सर स्किल से ही मतलब है। स्किल से कि अगर मतलब है वो, ना, पेडागोगिक हाँ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी वही चाहिए, एंड इनफैक्ट वही जितना सर। जितना पैसा लगा रहे हो एमबीए के लिए, बिकॉज एमबीए एक ऐसी डिग्री होती है जहां पर हम जो होते हैं बच्चे वो बहुत रिस्क में होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन यस तक हम सर। मान सकते हैं हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बट एमबीए में इट इज टोटली अप टू अस, हमें खुद, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी एक इंडिविजुअल केपेबल होता है कुछ एवरेज पैकेज लेने के लिए, है ना? तो ये हमारा खुद का चॉइस होता है, बिकॉज वो 2 साल हम वहां पर जाके कंपनी में जॉब भी कर सकते थे, एंड यस सर। उसके अलावा वो 2 साल आप पढ़ाई में लगा भी रहे हो और साथ में फीस भी दे रहे हो, है ना? So the बिल्कुल ROI सर। is going to be very high when it comes to these colleges like Symbiosis and all. Okay? तो यस सर। Symbiosis का जो ट्यूशन फीस है वो ही कुछ 20 लाख रुपए के आसपास है यार, एंड देन फिर उसके यस सर। बाद उसके ऊपर से भी कैपिटेशन अमाउंट आपका 15 लाख तो जाएगा ही जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? ओके। हाँ, तो सिम्बायोसिस इज यस सर। गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट, एंड इनफैक्ट ये सारी बातें तो हम तब करने के लिए होते जब आपने स्नैप का एग्जामिनेशन दिया होता। स्नैप एग्जामिनेशन आपने नहीं दिया है वैसे भी, तो यस यस। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सिम्बायोसिस बेसिकली, है ना? तो ओके सर। हाँ जी, उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस। एसपी जैन, बिल्कुल एसपी जैन ग्लोबल प्रोग्राम इज अगेन देयर। एसपी जैन ग्लोबल प्रोग्राम एक इंटरनेशनल प्रोग्राम माना जाता है इस टाइम पर। ज्यादातर बच्चे क्यों जाते हैं इसके लिए? बिकॉज इट इज ए ट्राई कंट्री प्रोग्राम, ओके। और आपने फोर्ब्स की रैंकिंग सुनी है? फोर्ब्स की रैंकिंग होती है जिसमें रिचेस्ट पर्सन, अलग अलग टाइप की रैंकिंग होती है। एजुकेशन यस सर। रैंकिंग में फोर्ब्स की रैंकिंग में 11th नंबर पे आता है एसपी जैन ग्लोबल, ओके। तो ओके सर। ग्रेट। हाँ, तो एसपीजीएन ग्लोबल, यू कैन थिंक अबाउट इट, इट इज देयर इन योर ऑप्शन एज वेल, एंड इनफैक्ट वी कैन आल्सो प्रोवाइड यू एसपीजीएन ग्लोबल। हमें जस्ट आपका एक बार मेरिट चेक करना पड़ेगा, एंड देन कॉलेज से कंफर्मेशन लेने के बाद आई कैन जस्ट टेल यू कि हाँ आपका यहाँ पर हो सकता है, ओके। अपार्ट ओके फ्रॉम सर। इट, लेट्स टॉक अबाउट IMI. IMI is again there in a pocket. According to, देखो IMI basically the main campus is Kolkata, Delhi campus is secondary one, okay. तो उसमें क्या होता है, when it comes to IMI, it totally depends on to your interview. जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो because it will be the general interview for both the campuses, okay. तो वहां पर आप कैसा परफॉर्म करते हैं ये उस टाइम पर डिपेंड होगा कि आप किस कैंपस में एडमिशन लेने वाले हैं, ओके। वेदर इट इज ओके सर। कोलकाता, वेदर इट इज दिल्ली, वेदर आपको वो कोलकाता में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं, या फिर यू हैव टू सेटल विद दिल्ली ओनली, ओके। वो डिपेंड करता है, ठीक है ना?
इसके Okay, sir. अलावा सी एज आई एम एन एडमिशन काउंसलर, मैं 3 से 4 साल तो मेरे को मिनिमम हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कॉलेजेस अपने खुद हिसाब से सजेस्ट करना चाहूंगा, ओके, व्हेन इट कम्स टू एमबीए, जहां पर आपका कुछ ज्यादा आपको अमाउंटिंग्स भी नहीं लगानी है एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम बेस्ट आउटपुट पॉसिबल, ओके। दो Okay, sir. कॉलेज में बताऊंगा आपको अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, दिल्ली, ठीक है। आप सॉइल के बारे में जानते हैं, स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप? Yes, sir. Short form तो पता है, full form नहीं पता. सॉइल में नाम सुना है वैसे. क्या क्या रिस्पॉन्स है आपका सॉइल को लेकर? आप कैसा समझते हो इस कॉलेज को, कैसा लगता है आपको? सर नाम में तो कुछ लीडरशिप लगता है मेरे को, इसके नाम में तो ऐसे हाँ मुझे मतलब लीडरशिप आता है. पूरा मतलब पढ़ा इसी नहीं से तुमने रिलेटेड. अच्छे से इसके बारे में, हाँ, है ना? इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, बट ये कि मैंने नाम सुना है बस. ये मैंने देखो मैं नाम सुना है बताता हूँ बस तुम्हें ये. इस कॉलेज के बारे में। देखो एमबीए कॉलेज, सबसे पहले हमें एक चीज देखनी होती है, उसका कॉर्पोरेट सेल कितना अच्छा है, उसके मार्केट में नेटवर्किंग कितनी अच्छी है। बिकॉज एमबीए प्लेसमेंट मांगता है, और प्लेसमेंट के लिए मार्केट में नेटवर्क होना चाहिए, है ना। तो उसी के लिए बेसिकली अगर सॉइल का तुम एक बार पूरा हिस्ट्री चेक करोगे, जस्ट मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, कि उसी के लिए अगर आप जाओगे तो वो कॉलेज जो बनाया गया है, 30 सीईओज ने मिलके उस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया है। तो सीईओज लाइक सुंदर पिचाई, जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं, उन लोगों ने मिलके, एक उनका इंटरेस्ट था, नहीं तो उनको क्या ही पड़ी थी यार, दे आर सीईओ इन अ कंपनी, वो उनके पास बहुत अदर वेज होंगे पैसे कमाने के लिए, है ना। So this college is totally related to the philanthropical activities and एक मैनेजमेंट की इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बनाया गया है। Getting my point? तो उसमें एक चीज की गारंटी तो आपके पास रहेगी कि आपकी प्लेसमेंट 100% रहेगी, और उसके अलावा आपका जो 10 का है तो ज्यादा नहीं है, कुछ 12-13 लाख के आसपास है, ठीक है। हाँ, तो इट इज वन ऑफ द कॉलेजेस दैट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर। उसके अलावा अगर जैसे आपने दूसरी चीज बताई थी कि अगर कोई कॉलेज आपको 8 लाख के अंदर मिल जाए, वो भी अच्छा है आपके लिए। आप दूसरा कॉलेज भारतीय विद्यापीठ देखो। भारतीय विद्यापीठ सुना है आपने? यस सर. भारतीय विद्यापीठ इज अ वेरी गुड कॉलेज, बिकॉज कॉलेज जो है वो 1956 में एस्टैब्लिश था यूनिवर्सिटी, और तब से वो चलता आ रहा है, ठीक है। तो यस, तो भारतीय विद्यापीठ का जो इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज देखोगे, इट इज समवेयर अराउंड 50 लाख रुपीज, ओके। तो या तो वो पैकेजेस देखो, वो तो सारे पैकेजेस टू बी वेरी फ्रैंक बहुत लिमिटेड और बहुत कम बच्चों को जाते हैं, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, बट अगेन एवरेज पैकेज इज रियली गुड इन भारतीय विद्यापीठ, क्योंकि कॉलेज को 50 से ज्यादा साल हो चुके हैं इंडिया के एजुकेशन इंडस्ट्री में। तो उसका भी जो कॉर्पोरेट सेल है और टाइप्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके लिए बीमैट का एग्जामिनेशन लिखना होगा, दैट इज कंपलसरी। उसके लिए मैं आई टेल योर केस मैनेजर, दे विल बी शेयरिंग यू द डिटेल्स ऑफ बीमैट एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन जस्ट आपको अपीयर करना है एंड एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड। तो एक और चीज देखो, बेसिकली क्या होता है, हाउ वी आर गोइंग टू असिस्ट यू विद द प्रोसेस। कॉलेजेस के बारे में आई थिंक मैंने आपको काफी बता दिया है, एंड आपको लिस्ट भी और प्रोवाइड हो जाएंगी। यू हैव टू डू सम रिसर्च बाय योर ओन एंड एज वेल। तो बट उसके भी अलावा जब मेरे से आपको कभी भी बात करनी हो, यू कैन टेक माय नंबर एज वेल पर्सनली, एंड यू कैन जस्ट कॉल मी एनी टाइम, ओके। और उसके अलावा द मेन थिंग जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी है, देखो सबसे पहले कॉलेज जो होता है, इट इज नॉट ओनली इंक्लाइन टुवर्ड्स योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जब एमबीए की बात आती है, उसमें जीडीपीआई भी होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो हमारा रोल कहाँ रहता है, आपके जीडी एंड पीआई में हम आपको हेल्प करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू लैक इन जीडी एंड पीआई। जैसे कैट में आपने मेरे को बताया, इट इज समवेयर अराउंड 56 परसेंटाइल, यस 52, यस 53। तो बेसिकली देखो, अगर कोई कॉलेज है, लेट्स टॉक अबाउट सॉइल कुछ लेता है 80 परसेंटाइल के अराउंड, ठीक है। तो फिर वहां पर आपका वो जो परसेंटेज में आपने लैक किया है, जैसे आईएमआई कुछ 90 के अराउंड लेता है, ठीक है, वो परसेंटाइल में जो आपने लैक किया है, हम उस गैप को फिल करते हैं। हम जीडीपीआई में स्ट्रॉन्ग रहते हैं, एंड फॉर दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन गैप दैट इज कमिंग इन बिटवीन, आपको हमारा एक पर्सनलाइज्ड क्रिएटेड टेस्ट होता है, जिसका नाम है सीपीसीजी टेस्ट। इट इज जस्ट एन साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो आपको देना है। उसमें आपका इंटरेस्ट एरिया आएगा कि हाँ, यू आर इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट। तो फिर उस टेस्ट के बेसिस पर जो 35 to 40 पेजेस की रिपोर्ट आएगी, हम कॉलेज में शो कर सकते हैं द स्टूडेंट इज हैविंग द कैलिबर, ओके।
Yes. So this is our way of working. It will be complicated for you, but like we are not here sitting you to only provide admission to you. We have to provide you a safe admission. Okay. जहाँ पर आपको Yes, sir. कहीं भी validation में कोई problem ना आए, कभी भी process में कभी कुछ दिक्कत ना आए. That is the only reason we do so much of these processing and all. Form fill-ups भी होंगे आपके. And last thing from my side, I'll just conclude right now. लास्ट थिंग ये है कि देखो यू हैव ऑप्शंस फॉर टीयर 2 कॉलेजेस जो कि एमबीए में बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है. बिकॉज अगर आप टीयर 3 के लिए जाओगे कॉलेजेस के जैसे जयपुरिया वगैरह आपने सुना होगा नाम, दिल्ली के आसपास ही है. इन कॉलेजेस का तो यार देखो आज मुझे बोलोगे मैं 2 घंटे में ऑफर लेटर निकलवा के दे दूंगा आपको, है ना. तो बट आई डोंट वांट यू टू गो फॉर दीज कॉलेजेस बिकॉज आपके एमबीए का फिर कुछ फायदा नहीं होगा ना. यस सर. यस. तो ये जो कॉलेजेस हैं जिनके लिए आप जा रहे हो, जो कॉलेजेस आपने चूज किए हैं, these colleges are there in demand. और अभी ये कॉलेजेस आपके पास ऑप्शन में भी नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. यू शुड थैंक द सिचुएशन कि हमें एनआरआई सीट्स जो है वो कैंसिल्ड मिली हैं इस टाइम पे. समझ रहे हो मेरी बात. तो यस सर. ये कॉलेजेस तो अभी देखो कैट का एग्जामिनेशन हुआ था 24 नवंबर या 25 नवंबर को हुआ था और कैट का रिजल्ट आ गया था कुछ जनवरी और फेब के आसपास आ गया था, है ना. तब तक तो ये कॉलेजेस बचते भी नहीं है, तभी ये सारे कॉलेजेस बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड होती है ना मैनेजमेंट कोटा में. तो ये कॉलेजेस आपको अभी क्यों मिले हैं क्योंकि एनआरआई सीट सब कैंसिल हो चुकी है. देयर विल बी नो एनआरआई दिस ईयर इन द कंट्री टू बी कमिंग एज एन स्टूडेंट. ओके. So that is the only reason you guys have the opportunity to get an admission into these colleges right now. But again, वो भी बहुत limited है, seats बहुत कम है. So try to just enroll into the process as soon as possible. Okay. Okay sir. हाँ, if you are interested for it. Okay. So और उसके अलावा तो as such there is no problem. I think like we can easily help you with your options. And उसके भी अलावा you will be provided with lot of kits. आप हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे तो शॉप ऑप्शन है, वहां पर आप चेक करो. व्हेन अ रजिस्टर्ड क्लाइंट इज देयर विद अस ऑल दोस किट्स आर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री. उसमें जीडीपीआई है आपका. अगर आप अब्रॉड का भी कभी प्लान करते हैं तो आइल्स रजिस्ट्रेशन आइल्स का उसका किट है वहां पर, ठीक है. ऑल दोस प्रोडक्ट्स आर देयर विद यू इन कॉम्प्लीमेंट्री अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन अमाउंट. ओके. जो आप रजिस्ट्रेशन करके हमारे कंपनी के साथ एडअप होते हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री उनका पूरा फायदा उठाओ बिकॉज वही जीडीपीआई जो है एक्सपर्ट्स के थ्रू क्रिएटेड है. उन्हीं में से कहीं से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं इन योर जीडी एंड पीआई राउंड. ठीक है. ओके सर. तो दिस इज द थिंग. बाकी आप डिसाइड करो एंड जस्ट आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप इस चीज को मई के मंथ में ही कंप्लीट करो बिकॉज हमारी हर मंथ के एंड में एक रिपोर्ट जाती है कॉलेज को. उस रिपोर्ट में हमारे स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, ठीक है. तो अगर मई में रखोगे इट विल बी बेटर फॉर यू बिकॉज सीट्स जो है अभी इस टाइम पे अवेलेबल है. बट अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बहुत लिमिटेड है ना. यस सर. हाँ चलो ठीक है. फिर और कुछ डाउट है आपको? कुछ भी मैंने आपसे शेयर किया उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट यू कैन आस्क सर. यस सर, मेरा एक डाउट है सर इसमें. हाँ बताओ हिमांशु. इसमें एडमिशन प्रोसेस के लिए मतलब क्या मतलब प्रोसेस है? मैं बता देता हूँ आपको. देखो बेसिकली क्या होता है स्टार्टिंग में because like on the conversation I cannot trust you as well and in fact you cannot trust me as well. Yes. So before registration I cannot tell you to go for registration. आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए there will be a checklist of documents your case manager will be sending you. वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए हमें. देन उसके बाद as soon as the documents are verified and I think you are already done with the common application form. Yes. So हाँ जी. Yes sir. After then just after the verification then you can go for the registration part. Okay. Registration के बाद there will be a creation of registration ID. आपकी फाइलिंग के साथ आपके प्रोफाइलिंग के साथ रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो डिस्पैच हो जाएगी. उसी रजिस्ट्रेशन आईडी से आप कॉलेज में जाने जाते हैं कि या दिस स्टूडेंट इज एन कैंडिडेट ऑफ डायरेक्ट एडमिशन ग्रुप. ओके. So within 1-2 days you will be getting a message on your phone. जो आप मोबाइल नंबर देते हैं वहां पर उस कॉलेज से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा that your processing has been started and you will be shortly like informed about the GD and PI by your admission counselor. Okay. ओके. Yes. फिर उसके बाद GDPI हम आपको बताएंगे. मोस्ट प्रॉब्ली GDPI आपका ऑनलाइन ही होने वाला है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन. ठीक है. तो लेट्स सपोज यू आर स्टार्टिंग योर प्रोसेस टुडे. ओके. आपको मे बी 1-2 डेज में नोटिफिकेशन आ जाएगा कॉलेज से
within 1 week आपका GDPI भी schedule हो जाएगा. Okay? ओके, हाँ तो जी. सर जो नोटिफिकेशन आएगा वो डायरेक्टली कॉलेज से आता है वो कॉलेज से आता है आपको नोटिफिकेशन. ओके, उसमें हाँ कॉलेज इन्वॉल्व रहता है डायरेक्टली. और फिर उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली जीडीपीआई के लिए आपको प्रिपेयर रखना है अपने आप को. किट्स वगैरह का यूज करो. आपको इनफैक्ट लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स आर देयर इन डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल्स आल्सो. यू कैन जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम देम. ओके, वन ऑफ देम इज Rekha ma'am. She has interacted with you. She can train you really well for GD and PI. ओके, तो बहुत अच्छा आप परफॉर्म करोगे. देन उसके बाद एंड देन उसके बाद द प्रोसेस विल बी देयर कि आपको फिर वेट करना है ऑफर लेटर के लिए. देन इट विल बी आवर रिस्पांसिबिलिटी टू गिव यू द रिस्पांस. ओके ओके. यस. देन उसके बाद द फर्दर प्रोसीडिंग्स विल बी देयर. ओके Beta, Himanshu, I just want to say a few words. I'm Professor Manchanda. I'm the advisor to the DAG group. I'm also IP University in Delhi. Once the registration, it becomes our responsibility to ensure that you get into IMI. That's what you have, I think. And उसके बाद में risk fee होगी, whatever is discussed, it will be not a very large amount, government amount, that is to be paid to get the offer letter from the college, from IMI Calcutta. उसके बाद में ही आपको देना है. So basically, you know, lot of expenses are involved. So take care of that. And since luckily the NRE seats are also available, so we have been able to speak to them to earmark of them for our students, because you know, we would definitely like people from Delhi getting into very good colleges. And you got to have, I just checked your background. It's a very good background in terms of the institute, Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, one of the best I think institutes in North India that way. Yes sir. Especially set up in Rai Bareilly, because it's you can see the constituency of our Prime Minister earlier. So basically, Himanshu, I would suggest this as soon as possible. The limited 4-5 seats left, and there'll be we are having 3 more sessions after you. तो कभी भी fill up हो सकती हैं. तो थोड़ी और अगर आपको help चाहिए, you can speak to Miss Rekha Tiwari again, or our other counselors, and I would like you are able to do this registration and the closing as soon as possible. That's my suggestion to you. Thank you. Okay sir. Okay sir, I'm getting your point. So in this case, I believe आपको बेटा सब कुछ clear है? Yes ma'am. Himanshu, now something important. You had great insight from Nikhil sir, a wonderful journey, I'll say, of understanding, right? So Yes, sir. Himanshu, now one thing important. See, I'll be closing the file tomorrow at 1 without fail. In the sense, we had many queries, many confirmations, many registrations, starting from May 1 onwards, okay? So tomorrow at 1, we will be closing and sending to different institutes, okay? So you have time, let's say today evening hours and tomorrow morning hours to take your decision, number 1, okay? Okay ma'am. Second thing, Himanshu, I believe आपकी मम्मी बुला रही है पीछे से. Yes ma'am, hold a second. Okay. No, actually they are just calling me just to go outside. Okay, no issues. So what is important, Himanshu? See, if I see you at my son's place, what exactly as a mother I have vision for you. That's very important to understand. Now, I'm just sharing few important things which will help you in taking decision. Number 1. See, we meet so many students with Zoom session, but one-on-one call, आपकी सिमरन मैडम ने request किया तो पूरा management one-on-one call के लिए आ गया. Reason, Simran is one of the finest counselor we have. Okay, so you should be thankful to Simran ma'am who has initiated your case. Okay, number 1. Number 2, one-on-one session is you're having that personal space with us once we are discussing, right? Number 3, see, when you're sharing Delhi now, see, I am a proper Delhiite since my childhood. I am in Delhi, but Delhi में रह के बेटा एक national international exposure नहीं मिलता. Okay, I'm staying in South Delhi. Anytime you come, we have our office in South Delhi. Oscars opposite IIT Delhi. जब कोविड लॉकडाउन खत्म हो जाएगा आप जरूर आइएगा, ठीक है? एंड नंबर 4, what is very important, number 4, आप ये सोचिए कि इतने सीनियर्स लोग आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है बेटा.